آج ہم بیگم اختر ریاض الدین کا سفر نامہ ایک ہے دنک پر قدم، اس میں سے تھوڑا سا حصہ جو ہوائی کے عنوان کے تحت آپ کے سلیبس میں شامل کیا گیا ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ تو بیگم اختر ریاض الدین کا یہ سفر نامہ جو ہے یہ امریکہ کا سفر نامہ ہے، جس میں چونکہ ان کے شوہر جو تھے وہ ایک بیوروکریٹ تھے، وہ جاتے رہتے تھے باہر ٹریننگز کے لیے، تو یہ بھی ساتھ جاتی رہتی تھیں۔ تو یہ سفر نامہ جو ہے یہ بھی اسی نوعیت کا سفر نامہ ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ وہ گئیں، امریکہ گئیں، وہاں پر ہوائی کی اسٹیٹ میں ان کی ٹریننگ تھی، تو وہاں پر ہی جا کر یہ رکیں، راستے کے مشاہدات جو ہیں ان کے، اور وہاں پر ان پر جو کچھ بیتی اس کا ذکر بڑے خوبصورت انداز میں مزاح کا عنصر یہ اپنے سفر ناموں میں شامل کرتی ہیں۔ یہی ان کی انفرادیت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے سفر ناموں میں ہندی زبان کے لفظ استعمال کرتی ہیں، اور اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ یہ چونکہ پیدا کلکتہ میں ہوئی تھیں، بنیادی طور پر آباء و اجداد ان کے ہندوستان سے تھے، تو وہ ایک تعلق جو بنتا ہے یا زبان کی شیرینی کے حوالے سے، تو یہ اپنی تحریروں میں، اپنے سفر ناموں میں ہندی کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال اکثر کرتی ہیں۔ تو یہ جو چند صفحات اس سفر نامے میں سے آپ کے سلیبس میں شامل ہیں، اس میں یہ لکھتی ہیں کہ دنیا کی حسین سفر ہمیشہ مجھ پر مسلط رہے ہیں۔ بہت لفظوں کا خوبصورت استعمال کرتی ہیں۔ اب مسلط سفر کا مسلط رہنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ انہیں زبردستی سفر جو ہے وہ مجبور کرتا تھا کہ مجھے کیا جائے۔ اچھا، سیاح کا اور عام مسافر کا ایک فرق ہوتا ہے۔ سیاح جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کو باریک بینی کے ساتھ، گہرے مشاہدے کے ساتھ دیکھتا ہے، جبکہ مسافر جو ہے اس کو صرف منزل تک جانے کی جلدی ہوتی ہے، راستے کی چیزوں کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو بیگم اختر ریاض الدین بھی چونکہ ایک سفر نامہ نگار ہیں، سیاح ہیں، چیزوں کو گہری نظر سے دیکھتی ہیں، مشاہدہ بہت زیادہ ہے ان کا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں دلچسپ پہلو جو ہیں وہ تلاش کر لیتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی حسین سفر ہمیشہ مجھ پر مسلط رہے۔ یہ ایک اور سے، یعنی یہ جو امریکہ کا سفر جو ہے، ہوائی کا سفر جو ہے، یہ وہ کہتی ہے یہ ایک اور سے، کچھ اتنے لمبے ہوائی سفر کا ڈر، کچھ ایک صاحبہ نے ڈرایا کہ ٹوکیو سے ہونولولو جو ہے یہ ہوائی کا دارالحکومت ہے، تو یہاں تک نیچے بحر الکاہل ہوتا ہے، یعنی نیچے سمندر ہی سمندر ہے اور اوپر خدا، یعنی ایک سفر جو ہے وہ شروع کرنے سے پہلے ہی وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایک صاحبہ نے یہ بتایا کہ وہ جو سفر ہے وہ بڑا خطرناک ہے، کیونکہ پورے سفر میں نیچے سمندر ہے اور اوپر خدا ہے، کوئی چیز نہیں، تو سمندر کا خوف، کہیں زمین کا ذرا سا ٹکڑا بھی ڈھارس کے لیے دکھائی نہیں دیتا۔ ڈھارس ہوتا ہے حوصلہ، تو زمین وہ کہتا ہے حوصلے کے لیے بھی دکھائی نہیں دیتی کہ کہیں پر تھوڑی سی زمین نظر آ جائے۔ تو وہ کہتی ہے کہ پہلے تو صاحبہ نے یہ ڈرایا، جو شروع میں ہی سفر ابھی شروع ہی نہیں کیا تھا، کہ یہ سفر اس طرح کا سفر ہے کہ جس میں سمندر ہی سمندر ہے نیچے، اور معمول کے مطابق اگر طوفان آ جائے، یعنی طوفان آنا ایک معمول کی بات ہے، طوفان آتے رہتے ہیں، اس نے کہا تو پھر پھر اللہ ہی پناہ دے سکتا ہے، اللہ کرتے، پھر سفر کیا ہے، اللہ کرتے گزرتا ہے، بڑی خوف کی کیفیت میں، موت کے خوف کی کیفیت میں ڈر کر یہ سفر گزرتا ہے۔ اب وہ پہلے جو ان کو سب سے پہلے سفر ابھی شروع نہیں کیا، تو کہتی ہے کہ ایک صاحبہ مجھے ملی جس نے مجھے ڈرایا کہ سفر خطرناک بڑا ہے، ایک تو سمندر ہے، دوسرا طوفان آتے رہتے ہیں، معمول کے مطابق آتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں۔ پیٹ میں ہول اٹھے، خوف پیدا ہوا، ڈر سا لگا مجھے، وہ کہتی ہے، لیکن میرے میاں تو 3 مہینے پہلے جا چکے تھے، اس لیے مراجعت ناممکن تھی، یعنی اب میں رک نہیں سکتی تھی، جانا تو تھا چاہے سفر خطرناک تھا۔ اوکھلی میں سر دیا تو ان دھمکوں سے کیا ڈرنا، جب مشکل کام کا وہ کہتی ہے میاں کے پاس جانے کا سفر کا ارادہ، یہ تو راستے کی مشکلات جو ہیں یہ ہیں ہی معمولی، لیکن میرے میاں
तो 3 महीने पहले जा चुके थे, इसलिए मुराजियत नामुमकिन थी। ओखली में सर दिया तो इन धमकों से क्या डरना। बोरिया बिस्तर बांधा, बिस्तर तो होते ही नहीं, ये मुहावरे की बात है। घर समेट कर एक गिराज में बंद किया। घर समेटने में अब ताक हो गई हूँ, माहिर हो गई हूँ, मास्टर हो गई हूँ। वो कहती है चूँकि इस तरह के सफ़र जो है वो मुझे करने पड़ते हैं, इसलिए अब घर समेटना जो है वो मेरे लिए आसान हो गया। मैं बड़ी मास्टर हो गई हूँ कि पूरे घर को समेट कर किस तरह सफ़र पे जाना है। तो वो कहती है इसमें अब मैं अच्छी तरह माहिर हो गई हूँ। इस तरह पल भर में इसकी गठरी बांध कर अलग करती हूँ कि गोया कभी था ही नहीं। सबसे छोटी बेटी जो अब कॉलेज में पहले साल में थी, 7 होली। बड़ी 2 लड़कियों के बीए के इम्तिहान थे, उनको 2.5 महीने बाद आना था। कराची पहुंचकर BOAC का टिकट बुक कराया। इस गरीब लाइन से अगर जाना हो तो, गरीब लाइन मुराद एयरलाइन है, वो कहते हैं कि इस जहाज़ से अगर जाना हो जिसका मैंने टिकट लिया है तो 24 घंटे की गुंजाइश रखनी चाहिए। क्यों कि अगर 26 को जाना हो तो 25 की सीट बुक कराओ, क्योंकि वो 1440 मिनट से कम लेट होना कसरे शान समझती है। जी 1440 मिनट जो हैं ये 24 घंटे ही बनते हैं। वो कहते हैं कि इतना लेट ये होती है कि एक दिन लेट होना तो कोई बात नहीं इसके सामने, ये अपनी बेइज्जती समझती है अगर इससे कम लेट हो तो। यानी ये एयरलाइन ऐसी है, लेकिन वो फिर भी कहती है कि मैं इसका क्यों हमेशा इसमें सफ़र करती हूँ। उसकी वो खूबियाँ आगे गिनवाती है कि लेकिन मैं फिर भी हमेशा इसी हवाई कंपनी को चुनती हूँ क्योंकि इसकी नशिस्त आरामदेह होती है, सीट इसकी बड़ी अच्छी है, वो कहती है, और अमला तमीज़दार। तो खैर हमने पहली ठेकी कलकत्ता में लगाई। ठेकी है स्टे करना, क्योंकि ये एयरलाइन जब इन्होंने सफ़रनामा लिखा है तो जाहिर है कि उस वक्त जो हवाई सफ़र था, हवाई जहाज़ का सफ़र, वो इस तरह नहीं था जैसे आज के दौर में है। तो मुख्तलिफ़ मुल्कों से होकर रुक कर जहाज़ जाते थे। तो इस कंपनी का जो रूट था वो जाहिर है कि वो कहती है कि पहली ठेकी इसने कलकत्ता में लगाई। पहले वो हिंदुस्तान गया तो कलकत्ता में रुका। कलकत्ता मेरी जाए पैदाइश है। हालांकि मैं सिर्फ 1 साल की शीर खार वहाँ से ले आई गई थी, यानी जब मैं दूध पीती थी 1 साल की बच्ची थी, वहाँ से मुझे लाया गया था, लेकिन फिर भी इस जगह से उनस था, प्यार था। जाहिर है कि इंसान को अपने वतन से, अपनी उस जगह से जहाँ पर वो रहता है, ज़िंदगी गुजारता है, पैदा होता है, एक ख़ास किस्म की मोहब्बत होती है। वो कहती है मुझे भी कलकत्ता से मोहब्बत थी, उसको इसको देखने का अरमान था, लेकिन मेरे जज्बात ने मुझे हमेशा धक्के खिलवाए, मुझे जलील किया। वो कहते हैं मेरे जज्बात, मेरे अंदर एक जज्बा था, मैं देखूं, मोहब्बत थी अपने वतन को देखने की, अपने शहर को देखने की, जिस शहर में मैं पैदा हुई। लेकिन वो कहती है कि मेरे जज्बात ने हमेशा मुझे धक्के खिलवाए, मुझे ख़राब किया, मुझे जलील किया। एयरपोर्ट से लेकर पुलिस स्टेशन तक जो मेरा और बाकी मुझ जैसे सयाहों का हाल हुआ वो नागुफ्ता भी है, वो नाकाबिले बयान है। यानी मैं, वो कहती है कि जब कलकत्ता से एयरपोर्ट से अपना शहर देखने के लिए निकली तो जाहिर है कि वहाँ के असूल, वहाँ के कवानीन के मुताबिक वहाँ पर पुलिस को भी बताना होता है। तो वो कहती है कि पुलिस और फिर वो कस्टम वाले, उन्होंने इतना ख़राब किया, इतना जलील किया कि जो कुछ वहाँ पर मुझ के, मेरे साथ और मुझ जैसे सियाहों के साथ हुआ वो नाकाबिले बयान है। खुदा किसी शरीफ इंसान को कलकत्ते न ले जाए, यानी इतना वो ख़राब करते हैं वहाँ के कस्टम वाले, वहाँ के पुलिस वाले इतना तंग करते हैं। अगर मिर्ज़ा गालिब ने इसमें कुछ देखा तो हिंदुस्तानी कस्टम ऑफिसर और बनिया पुलिस से पहले देखा होगा। बनिया पुलिस से मुराद हिंदू पुलिस। तो कहती है कि अगर गालिब ने कलकत्ता में कुछ देखा था, गालिब ने भी कलकत्ता के एक सफ़र किया था। गालिब थे तो दिल्ली में, लेकिन जब 1857 के बाद इनकी पेंशन जो है वो ख़त्म हुई तो उस पेंशन की बहाली के सिलसिले में गालिब ने कलकत्ता का सफ़र किया था। तो वो कहती है कि गालिब ने अगर वहाँ पर कुछ कलकत्ता की उन्होंने तारीफ़ भी की है अपनी शायरी में। तो वो कहती है कि गालिब अगर कलकत्ता की तारीफ़ करता है तो उसको ना तो कस्टम वालों का सामना हुआ है और ना बनिया पुलिस का, हिंदू पुलिस का, जो लोगों को जलील करती है। किस्सा को होता मुख्तसर बात कि हमने जल्दी से अपनी जान छुड़ाई और हांगकांग रवाना हुए, यानी अगली मंजिल पर हमारा जहाज़ जो है वो चल पड़ा।
वहाँ जाकर रूह खुश हो जाती है। ताज़ा दम होकर टोक्यो रवाना हुए। रास्ता सख्त तूफानी था। कम वक्त पहने पुराना खटारा जहाज 4 घंटे लरसता रहा और हमें लरजाता रहा। यानी पुराना जहाज इस तरह चलता रहा कि कांपता रहा और हम डरते रहे। साथ बैठा जापानी ताजिर तसल्ली देते हुए बोला, ये तो कुछ भी नहीं, जब टोक्यो से हवाई जाओगी तो हवाई जहाज ऐसे उछलेगा जैसे छाछ में गए हों। यानी वहाँ तो ये धक्के तो कुछ धक्के नहीं है, ये तो जहाज कुछ नहीं उछल रहा। असल तो जहाज वहाँ उछलेगा जब आप वहाँ से जापान का सफ़र आगे शुरू करोगी। हमने इन्ना लिल्ला पढ़ लिया कि अब हम अल्लाह के लिए ही हैं मुश्किल हालात में, और इरादा कर लिया कि मियाँ को हवाई में ही रहने दें और हम टोक्यो में उनकी वापसी का इंतज़ार करें। लेकिन खाक छानने का शौक़ खौफ व ख़तर पर गालिब आ गया और जनरल शेख और बेगम शेख की खातर मदारात का मज़ा चख कर 2 दिन टोक्यो ठहर कर जल तू जलाल तू कहते हुए, यानी जो मुसीबतें आई वो अल्लाह ही टालेगा, ये कहते हुए पक्का इरादा करते हुए खौफ की कैफियत में जापान एयरलाइंस में बैठ गए। हवाई जहाज चला तो हमने अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि या रब हमारी इज्जत रख ले और खैर से सफ़र पूरा कर ले। मेरे मौला ने मेरी मुराद ऐसी पूरी की कि सारा सफ़र आसमानों में रेशम की तरह सर सर करता गुजर गया। यानी बड़े आराम से, बड़े सुकून से सारा सफ़र जो है वो गुजरा। मैंने इतने खुशगवार 6 घंटे कभी नहीं गुजारे थे। यानी वो कहती है कि डराया तो बड़ा गया था, लेकिन उस सफ़र में कि जहाँ जब आप हांगकांग से जापान जाओगी तो वो सफ़र ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन कहती है कि अल्लाह की मेहरबानी से मेरा वो सफ़र 6 घंटे का सफ़र जो हांगकांग से जापान अमेरिका का था, हवाई का था, वो इतना खूबसूरत 6 घंटे का सफ़र गुजरा कि मैंने 6 घंटे ज़िंदगी के इतने खूबसूरत 6 घंटे नहीं गुजारे थे। जबकि वो सफ़र करने से पहले जिस तरीके से मुझे डराया गया था तो लगता था कि वो सफ़र इंतहाई मुश्किल होगा। रात को 10:30 बजे हमारा जहाज़ हवाई के दारुल सल्तनत होनोलुलु में उतरा। मियाँ को तार दे दिया था, उम्मीद थी कि हवाई अड्डे पर हार लेकर पहुँचेंगे। जजीरा हवाई की एक रस्म देरीना है, पुरानी रस्म चली आ रही है कि हर आने वाले का फूलों के हसीन गजरों से इस्तकबाल किया जाता है। इसलिए अरमान था कि कम अज़ कम मियाँ तो फूल निछावर करने पहुँच जाएंगे, यानी उस रस्म को अदा करने के लिए मियाँ तो पहुँचेंगे। लेकिन मियाँ रियाजुद्दीन साहब गैब, रात का वक्त, मुझे उनका पता भी नहीं मालूम, जुनाब बिल्ली की तरह 3 घर तब्दील कर चुके थे। हवाई की यूनिवर्सिटी में फ़ोन किया तो उन्होंने कहा ईस्ट वेस्ट सेंटर से पूछो। ये जहाँ पर वो गए हुए थे कि उस सेंटर से जो लोग यहाँ पर तरबियत के लिए, ट्रेनिंग के लिए, कोर्सेज के लिए आते हैं तो उस सेंटर से पूछो। इतने में एक टैक्सी वाला आगे बढ़ा, मैं वहाँ तक आपको ले जाता हूँ, बाकी फिर देखा जाएगा। हाई राइज हॉस्टल तक पहुँचे तो ऊंची ऊंची इमारत, यानी जिस हॉस्टल में मेरे मियाँ ठहरे हुए थे, बड़ी ऊंची ऊंची इमारत, बत्तियाँ जल रही हैं, तलबा पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे मियाँ नदारत वो गए हैं, वो नहीं है। गुस्सा और परेशानी दोनों मिल गए। एक तो वो मिल नहीं रहा था जिसकी वजह से परेशानी और गुस्सा कि ज़ाहिर है कि आगे से वो आया नहीं है, हॉस्टल से मिल नहीं रहा, परेशानी के आलम में। वो कहती है दोनों कैफियतें मेरी जो है, एक गुस्सा भी है, परेशानी भी है। ये अच्छा इस्तिकबाल हो रहा है, रात को 12 बजे 3 महीने बाद बीवी आई है वगैरह वगैरह। इतने में एक कार लड़कियों से लदी फुंदी चीखती चिल्लाती आन कर रुकी। अनजान शक्लों ने मेरे गले में हार डाले। पीछे एक और कार, इसमें गिटार पर कुछ नौजवान हवाई के गीत गाते हुए, वो हवाई जो उनके जजीरे के मखसूस गीत, वो कहती है गाते हुए उतरे। और इन नौजवानों में छुपे हुए मियाँ रियाजुद्दीन मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं। इससे पहले कि मैं हस्बे मामूल बरसती, यानी मैं पहले भी उन्हें डांटती रहती थी, उनकी सहेलियों ने समझाया कि तार पड़ने में गलतफहमी हो गई है। हवाई का वक्त जापान के वक्त से 24 घंटे पीछे है, इसलिए अक्सर तारीखों में गड़बड़ हो जाती है। हमने मिलजुल कर 24 घंटे हस्बे मामूल बरसती, उनकी सहेलियों ने समझाया कि तार पड़ने में गलतफहमी हो गई है। यानी वक्त का फ़र्क है, जापान और अमेरिका के वक्त का फ़र्क। तो उस वक्त के फ़र्क में
24 घंटे का चूँकि फ़र्क है इसलिए तारीखों में अक्सर गड़बड़ हो जाती है, 24-25 का पता नहीं चलता। तो हमने जलकर का असल गड़बड़ तो हमारी शादी की तारीख से शुरू हुई थी। बहरहाल खुदा का शुक्र अदा किया, टैक्सी वाले का शुक्रिया अदा किया और फिर घर रवाना हो गए। तो ये सफ़रनामा जो है ये इंशाल्लाह हम अगले पीरियड में इसको कोशिश करेंगे मुकम्मल करने की। इस सफ़रनामे का भी खुलासा जो है वो इंतहाई अहम है और है भी एक दिलचस्प अंदाज में उन्होंने लिखा हुआ। उनके सफ़रनामे के चंद सफ़ात हैं, इन्हीं का आपने खुलासा लिखना है। और एक बात ये याद रखनी है कि यहाँ आपके जो खुलासे का सवाल आएगा, ज़ाहिर है कि उसमें हवाई तो लिखा होगा, मुसन्निफ़ का नाम आपने लाजमी लिखना है। मुसन्निफ़ का नाम अगर नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर इसकी मुसन्निफ़ा जो हैं बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन, उनका भी नाम होगा। फिर आपको 1 नंबर मिलेगा। 9 नंबर जो हैं वो आपको खुलासे के मिलेंगे और खुलासे के वही असूल के पैराग्राफ की शक्ल में और वाक़यात जो सबक में बयान किए गए हैं और जिस तरतीब से उसी तरतीब से आपने ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।